Okay, good morning, students. Last class we discussed filling of electrons in different orbitals according to different principles. First principle is Apo principle, second one Hund's principle, and third one Pauli's exclusion principle. The first principle completed according to Apo's principle, lower energy level orbitals are first filled, then higher energy level orbitals. And second principle is Hund's principle. Hund's rule or Hund's principle. According to Hund's rule, equal energy level orbitals first filled with one electron, then second electron will be filled with the orbitals. Pairing will be started. First one electron fill होगा उसके बाद pairing start. Means here first notice one thing. 1s orbital there is no any other subshells, then first electron will be two electrons filled in orbital, and p orbital having three suborbitals px, py, and pz. These three orbitals are same energy level orbitals. This same energy level orbitals, same energy level orbitals are same energy level orbitals are known as degenerate orbitals. Degenerate orbitals. Degenerate means equal energy level orbitals are known as degenerate orbitals. For example, p orbital. In p orbital having three suborbitals, these three suborbitals px, py, pz having same energy. How the electron field in this p orbital of subshells? So, according to Hund's principle, first one electron will be filled. तो इक्वल एनर्जी लेवल ऑर्बिटल में फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन फिल होगा, देन इलेक्ट्रॉन विल बी paired like this. Payload. Clear. So here, first one, some examples for Hund's rule. P orbital starts from fifth atomic number. Atom is boron. Boron से P orbital starting. For example, hydrogen, helium, lithium, beryllium. So helium having only one electron, then 1s1 and 1s2, 1s2, 2s1, because lithium having only three electrons. First least energy level orbital will be filled. So ये 1s orbital is lower energy level orbital than 2s orbital. Then two electrons completely filled this orbital. Then third electron will jump into the higher energy level orbital, that is 2s1 orbital. 2s1 orbital having vacancy for another one electron, then fourth electron, because beryllium atomic number is 4, then beryllium having four electrons, then this electron also enter into second 2s orbital. That's why the electronic configuration of beryllium is 1s2 2s2. This one is clear. Now starts from boron having five electrons. These five electrons, 1s2 2s2 2p1. The fifth electron enter it, means these two orbitals are completely filled, then electron enter into 2p orbital, fifth electron. Here the electron representation, this is known as electron representation. These two electron, one is positive spin, second one is negative spin, and here this p orbital having three suborbitals having same energy level orbitals. Let's say fifth electron enter into the 2px orbital, 2py orbital, suborbital, 2pz suborbital. And sixth atom is carbon. Carbon atomic number 6, 6 electrons are there. Then 1s2, 2s2, 2p2. Means यहाँ पे sixth electron also enter into p, because p orbital electron capacity is 6 electrons. In this p having 3 subshells already
one electron is there, 5, fifth electron, sixth electron does not pair with the 2px ऑर्बिटल, तो यहाँ पे 2px ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ पेयर नहीं होगा, then this sixth electron will enter into the 2p orbital according to Hund's rule, क्योंकि इक्वल एनर्जी लेवल ऑर्बिटल में वन वन इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद पेयर होगा. नेक्स्ट 7 एटॉमिक नंबर इज नाइट्रोजन. Here 1s2, 2s2, 2p3. Here then here this third electron also enter into 2pz orbital, does not pair with x 2px or 2py. यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये वन वन इलेक्ट्रॉन के साथ आप एरो भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. वन वन इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद देन नेक्स्ट एटम इज ऑक्सीजन. एटॉमिक नंबर इज 8. atomic number is electronic configuration 1s2, 2s2, 2p4. Total electrons are 8. Then p nitrogen, this p orbital having suborbitals all are 1 electrons, means half filled orbitals are there. Nitrogen में 3 electrons complete half filled हुआ, so each suborbital get 1 electron, 2px, 2py and 2pz. ऑलरेडी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो 1s2, 2s2 ये 4 हो गए, तो यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं. एंड 8 इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द 2px, means according to Ohm's principle, say degenerate orbitals get 1 electron, then it will be paired. तो जितना सब ऑर्बिटल्स है उस सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के बाद next electron will pair with the 2px. And next nitrogen, sorry, after oxygen, ninth atomic number is chlorine. 1s2, 2s2, 2p5. Then 5 electrons are present in p orbital, 2px, 2py and 2pz. Here ऑलरेडी 1 फिल करने के टाइम में भी, कंपल्सरी लिखने के टाइम पे भी ऐसे ही लिखने का. देन यहाँ पे पेयर हुआ फोर्थ इलेक्ट्रॉन, देन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विल पेयर विद 2py. इन केस नियॉन होगा तो 10, 2p6 होगा, 2p6 होगा तो दैट इलेक्ट्रॉन विल बी फिल 2pz ऑर्बिटल. ये p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होने के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू द 3s ऑर्बिटल. क्लियर? This rule will be explained by Ohm's scientist. And another one, fourth rule is Pauli's exclusion principle. This is very, very important principle. According to Pauli's exclusion principle, two electrons of orbital or subatomic orbital does not follow the same 4 quantum numbers. तो एक एटम में ऑर्बिटल में 2 electrons present होगा, तो these 2 electrons does not having 4 quantum numbers. तो यहाँ पे all the 4 quantum numbers of 2 electrons in the same atom are not equal. Same नहीं होगा. Clear? All the 4 quantum numbers are not equal. 2 electrons in the same atom. तो सेम एटम में 4 क्वांटम नंबर्स 2 इलेक्ट्रॉन को इक्वल नहीं होगा. 4 क्वांटम नंबर्स यहाँ पे क्या होगा, ये पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है. पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है. The 4 quantum numbers does not equal to the pair of electron in the same atom. यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, तो ये 4 क्वांटम नंबर्स एनी 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम डज नॉट सेम नहीं होगा. सेम नहीं होगा तो ही यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्पिन वैल्यू तो डिफरेंट रहेगा. फॉर एग्जांपल n वैल्यू सेम हो सकता है, l वैल्यू सेम हो सकता है, m वैल्यू सेम हो सकता है. These 3 quantum numbers having same values, but
these two electrons maybe. But yes, spin quantum number does not same for two electrons of similar atom. तो स्पिन क्वांटम नंबर अगर ये थ्री सेम होगा तो कंपलसरी स्पिन क्वांटम नंबर तो डिफरेंट ही रहेगा, क्योंकि सब शेल इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2 है, तो कंपलसरी वन इलेक्ट्रॉन हैविंग positive 1 by 2, another one electron having negative 1 by 2. The spin value is minus 1 by 2 and plus 1 by 2. तो फोर क्वांटम नंबर सेम होगा तो स्पिन क्वांटम नंबर तो डिफरेंट ही रहेगा. So that's why each suborbital get only two electrons. These two electrons compulsory having its spin value is opposite. तो दोनों सिंगल ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सिमिलर नहीं होगा. कंपलसरी सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स स्पिन वैल्यू ऑपोजिट स्पिन वैल्यू रहेगा. ऑपोजिट स्पिन वैल्यू होगा तो लोअर एनर्जी लो स्पिन वैल्यू रहेगा. लो स्पिन वैल्यू कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, हाई स्पिन कंपाउंड्स आर very less stable. The Pauli's, according to Pauli's exclusion principle, we can fill the electrons in orbital. We can fill electrons in orbital with its opposite spin values. Means each suborbital having two electrons, these two electrons does not have same spin values. ये wrong होता है. Same spin value नहीं रहेगा, opposite spin value रहेगा. Opposite spin value होगा तो ही यहाँ पे four quantum numbers does not equal for the two electron of same atom. तो same atom का four quantum numbers two electron का similar नहीं होगा. Similar कब नहीं होगा? Electrons ये डायरेक्शन में अरेंज होगा तो फोर क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा. इनकेस ये होगा तो जीरो नहीं तो वन होगा, फोर क्वांटम नंबर्स सिमिलर होगा. तो पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल फाइनली ये एक्सप्लेन कर रहा है ईच सबऑर्बिटल में टू इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी रहेगा, टू इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन वैल्यू ऑपोजिट स्पिन होगा. कंपलसरी एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव. ये स्पिन वैल्यू एक्सप्लेन कर रहा है Pauli's exclusion principle. These are the total rules we use to fill the electrons in atomic orbitals. First one Apo principle, second one Hund's principle, third one Pauli's exclusion principle. According to our textbook, first one is Abo's, next एक Pauli's, next Hund's principle. ये थ्री प्रिंसिपल आपको समझ में आएगा. तो Pauli's exclusion principle ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रॉन्स दोनों सिमिलर डायरेक्शन में नहीं होगा. एक ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो अनदर वन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा. ये Pauli's exclusion principle बताता है. बाकी Hund's principle डिजेनरेट ऑर्बिटल होगा तो वन इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद पेयरिंग होगा. Abo principle लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट फिल होगा, देन हायर एनर्जी लेवल. लोअर एनर्जी लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए आप मॉइलर एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो n प्लस एल वैल्यू को भी फॉलो कर सकते हैं. जिसका n प्लस एल वैल्यू लोअर होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होगा. इन केस n प्लस एल वैल्यू टू डिफरेंट शेल का सिमिलर होगा तो n वैल्यू जिसका लीस्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल करना है, उसका एनर्जी लोअर रहेगा. तो ये इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए मेथड है. तो प्रैक्टिस करो 1 to 30 तक कंपल्सरी आना चाहिए. 1 to 30 तक एलिमेंट्स को प्रैक्टिस करना है आपको, हाइड्रोजन से लेकर जिंक, हाइड्रोजन टू जिंक. क्लियर? तो ये सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लिखने के टाइम पे आपको क्लियर इंफॉर्मेशन समझ में आएगा. राइट, नेक्स्ट वन स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स. ये लास्ट टॉपिक है लेसन का. ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद लेसन कंप्लीट हो जाएगा. लेसन कंप्लीट होगा तो आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट 29-30 को, तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा केमिस्ट्री में. तो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. न्यूमेरिकल से 60 एबो, न्यूमेरिकल से 60 एबो क्वेश्चन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, और उसमें से कोई भी डाउट होगा तो व्हाट्सएप करो, सॉल्यूशन भेज दूंगा. क्लियर? तो स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड stability of half filled and completely filled. Completely filled. Stability of half filled and completely filled. The ground state electronic configuration of an element always corresponds to the
state of lowest energy. Ground state electronic configuration. Ground state means, तो जिसका ग्राउंड स्टेट में रहेगा उसका एनर्जी लोअर रहेगा. लोअर एनर्जी, जितना लोअर एनर्जी रहेगा उतना स्टेबिलिटी मैक्सिमम होता है. मीन्स इलेक्ट्रॉन्स स्पिन वैल्यू जीरो होना चाहिए. स्पिन वैल्यू जितना लोअर होगा उतना स्टेबिलिटी रहेगा. लेकिन ये एक्स्ट्रा रूल है. इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम स्ट्रिक्टली फॉलोज द थ्री रूल्स. The three rules are Hund's principle, Argo principle, and Pauli's exclusion principle. Even though in some cases like chromium, copper, where two subshells, 4s3d, differ slightly in their energy, then electron shifts from a subshell of lower energy level to subshell of higher energy level, like 3. तो यहाँ पे क्या होता है, हाफ फील्ड फुल फील्ड होगा तो भी एटम स्टेबल होगा, इतना याद रखो. हाफ फील्ड आर फुल फील्ड, कंप्लीटली फील्ड होगा तो भी एटम स्टेबल होने के लिए चांसेस होता है. तो ये हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड कब होगा? सम एटम्स है, एग्जांपल क्रोमियम एंड कॉपर. तो कॉपर का बाद में एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट क्रोमियम का देखो. क्रोमियम एटॉमिक नंबर इज 24. Here, according to three rules: Argo principle, Pauli's exclusion principle, and Hund's principle. Right? It's electronic configuration. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, 3d4 है. ठीक है. हम लोग जो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक किया उसके हिसाब से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो. 2, 2, 6, 10, 10 plus 4. Okay, 24. But this electronic configuration is higher energy level. मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम को सूट नहीं होगा. रीजन ये है, यहाँ पे फैसिलिटी है, ऑफ फील्ड होने के लिए फैसिलिटी है, इसका एनर्जी हाइयर होगा. बट यहाँ पे 4s ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस जो होता है वेरी स्लाइटली डिफरेंस रहेगा. दैट्स व्हाई this 4s electron will jump into the 3d orbital. Then 3d orbital will get half filled. When atom will get half filled orbital, then that will be more stable than first one. So इसका electron representation, this is known as electron representation. मैं ये last 4s का 3d का लिख रहा हूँ. 1, 2, 3, 4. क्लियर. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करें 4s2 3d4. यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है. बट d ऑर्बिटल ऑब्जर्व करो. d ऑर्बिटल इज नॉट कंप्लीटली फील्ड, इज नॉट हाफ फील्ड. ये हाफ फील्ड मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे एंटर होगा तो हाफ फील्ड होगा, तब इसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा. ये एक एक्सेप्शन केस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. एक्सेप्शन केस है. तो हाफ फील्ड होगा तो एटम स्टेबल होगा, फुल फील्ड होगा तो भी स्टेबल होगा. तो यहाँ पे फैसिलिटी ये है, फैसिलिटी ये है. तो ये दोनों का एनर्जी डिफरेंस कम रहेगा. तो यहाँ पे 4s में से इलेक्ट्रॉन 3d में आके इसको हाफ फील्ड करेगा. तो हाफ फील्ड करेगा तो यहाँ पे ट्रांसिशन भी मैक्सिमम रहेगा. देन एनर्जी यूज होगा. इलेक्ट्रॉन ट्रांसिशन होने के लिए मैक्सिमम एनर्जी यूज करेगा. तो जितना एनर्जी लॉस होगा उसका उतना स्टेबिलिटी क्रिएट होगा. तो यहाँ से मीन्स क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस इज रॉन्ग because it is unstable with this electronic, means unstable means less stable with this electronic configuration. But here according to half field rule, then this electronic configuration is 4s1 3d 5 is right, because 3d 5 means d orbital will get half filled 5 electrons. That's why this is more stable than फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो कभी भी आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो ये नहीं लिखने का, ये वाला लिखने का. मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4s to 3. तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा और डी सब ऑर्बिटल्स में एक एक में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. 1, 2, 3, 4, 5. दिस इज half filled orbital. That's why chromium is more stable with this electronic configuration, not with this, because here this 5 electrons, this electron will jump. यहाँ पे facility 1, 2, 3, 4.
मीन्स ये इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिटल के साथ ट्रांजिशन हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन ये 3 ऑर्बिटल के साथ, ये इलेक्ट्रॉन ये 2 ऑर्बिटल के साथ, ये इलेक्ट्रॉन ये 1 ऑर्बिटल के साथ। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में इजीली ट्रांसफर होने के लिए चांसेस है। इलेक्ट्रॉन जितना ट्रांसफर होगा, एटम का सेल्फ एनर्जी, खुद का एनर्जी क्या होगा इसमें यूज होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफर होने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इसका एनर्जी को डाउन करेगा, लोअर करेगा। जितना एटम का एनर्जी लोअर होगा, स्टेबिलिटी उतना मैक्सिमम है। That's why the chromium electronic configuration is this one is right. This one is off-field electronic configuration for chromium. Exception case से ये याद रखना। Next one full field का example बता। Completely filled. Completely filled ये facility होगा तो होगा हर एक में। ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे जम नहीं होगा कंपल्सरी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। Next one completely filled orbital. Example for chromium. इलेक्ट्रॉन बाइट में चाहिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसिशन। Okay. Next example for completely filled atomic orbital. Exceptional electronic configuration for chromium also. Sorry, copper. Copper atomic number is 29. Its general electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। तो ये कॉपर का हम लोग जो गेस करने वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है विदाउट दिस रूल, तो ये होता है। तो 4 + 6 10 10 29, ओके 29 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे लिखो ओके इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट according to Moore's principle 1 electron, then pairing will start here 1 electron is this electronic configuration is not half filled, not completely filled। यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है। कंप्लीटली फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड है। तो ये यहाँ पे फैसिलिटी तो 4 is 3d, तो दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस मिनिमम रहेगा। दैट्स व्हाई दिस 4 is electron will jump into the 3d orbital, then 3d orbital will get completely filled। तो ये 4 is इलेक्ट्रॉन की वजह से ये completely fill होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहेगा। दैट्स व्हाई the copper electronic configuration this is wrong according to completely filled orbitals, then 4s1 and 3d 10। तो यहाँ पे फैसिलिटी है, 4s में से 3d में इलेक्ट्रॉन जंप हो सकता है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होगा। ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जा रहा है, तो एनर्जी डिफरेंस है, तो इजीली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आएंगे तो यहाँ पे कंप्लीटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ ट्रांसिशन भी होगा इजीली। जितना ट्रांसिशन होगा उतना एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यूज होगा, एनर्जी यूज होगा तो उसका सेल्फ एनर्जी डिक्रीज होगा, सेल्फ एनर्जी डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉपर एंड क्रोमियम का वो होता है। ये दोनों 1 to 30 तक एलिमेंट्स हैं, 1 to 30 तक ये दो ही एलिमेंट क्रोमियम एंड कॉपर का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। बाकी सबका तो मतलब जो जैसे स्टार्टिंग में जिस किया वैसे ही रहेगा, और इसके बाद जो भी हो बाद में नेक्स्ट स्टैंडर्ड में नेक्स्ट क्लासेस में, नहीं तो पीरियडिक टेबल है वहाँ पे है वो चेक कर सकते हैं। तो ओनली 1 to 30 तक ओनली क्रोमियम कॉपर का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड हाफ फील्ड। क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड के हिसाब से स्टेबल रहेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड के हिसाब से स्टेबल रहेगा। दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेसन कंप्लीट हुआ, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लेसन से क्लियर होना चाहिए। कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद लिखना चाहिए, तो रूल्स को फॉलो करना है। एक बार रीड करो, जो भी डाउट होगा तो क्लियर करो। तो ये बेसिक लेसन है केमिस्ट्री का, ये बेसिक्स कितना परफेक्ट आएगा आपको उतना नेक्स्ट क्लास परफेक्ट समझ में आएगा। क्लियर? तो टॉपिक ऑब्जर्व करो। फर्स्ट वन, व्हाट इज एटम, what are the subatomic particles, discovery of electron, discovery of proton and discovery of neutron। Next, different atomic models, Thomson atomic model,
Rutherford atomic model, Bohr's atomic model, and different limitations. And next one, energy means absorption spectrum, emission spectrum, and hydrogen spectrum, atomic spectrum of hydrogen Bohr's, and limitations of Bohr's atomic model. Then quantum mechanics. Quantum mechanics gives the complete information about structure of atom and stability of atom. And next, quantum numbers. These quantum numbers completely explains the stability of structure of atom. Four quantum numbers: principal, azimuthal, magnetic, and spin quantum number. And then filling of electrons in the orbital according to three rules: Auger principle, Hund's principle, and Pauli's exclusion principle. And then another one rule is half filled and completely filled orbital. तो ये टोटल स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसे में टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करो, तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और टेक्स्ट बुक के पीछे कंपलसरी एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट एंड एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप टेक्स्ट बुक का ही सॉल्व करो, इनफ है, टेक्स्ट बुक का ही देख लो, नो डोंट गो एनी अदर रेफरेंस बुक। फर्स्ट रेफर योर क्वेश्चंस ओनली। टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दिया वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। अगर आप टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन है उतना सॉल्व करेंगे तो आपको 90% लेसन समझ में आ गया, समझ राइट। उसमें कुछ डाउट होगा तो आप पर्सनल व्हाट्सएप करके क्लियर भी कर सकते हो। प्रैक्टिस करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट थियरीज है, डे ब्रोगली's प्रिंसिपल, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, so based on that some numerical are there. Okay, now we are going to discuss some textual exercise questions. Textual exercise question ka first question. Okay, first we are going to discuss first exercise question. Calculate the number of electrons which will together weigh 1 gram. First one, 1 ग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ध्यान से देखो, वेट दिया ऑलरेडी 1 ग्राम एक्स 1 ग्राम दिया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम। 1 ग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है। बट ये मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स? मास ऑफ 1 electron is equals to 9.11 into 10 raised to minus 28 grams or 9.11 into 10 raised to minus 31 kgs। तो यहाँ पे ग्राम ले लो, ग्राम लेंगे तो यहाँ kg होगा तो 10 raised to minus 31, ग्राम होगा तो 10 raised to minus 28। 9.11 into 10 raised to minus 28 ग्राम। ध्यान से ऑब्जर्व करो, 9.11 into 10 raised to minus 28 gram. Question is calculate the number of electrons in 1 gram. So this much of gram having 1 electron. That means 9.11 into 10 raised to 28 gram having 1 electron. Then 1 gram having how many electrons? Simple cross multiplication. 9.11 into 10 raised to 28 gram having 1 electron. Then 1 gram of having how many electrons? Then cross multiplication. So 1 into 1, 1 upon 9.11 into 10 raised to minus 28. That is equals to 1.0976 into 10 raised to 28. 1.0976 into 10 raised to 28 plus 28 होगा, ऊपर आएगा तो सॉरी माइनस 28 ऊपर आएगा तो ये पॉइंट पे इस साइड लेकर आए तो 27 electrons. Simple. This much of gram having 1 electron. So 1 gram having how many electrons? Cross multiplication. ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का ये डिवाइड पे आ जाए. Then 1 upon 9.11 into 10 raised to minus 28. That is equals to this much of electrons having in 1 gram. And next one, second question. Calculate the mass and charge of 1 mole of electron. 1 mole of electron का चार्ज एंड मोल को
फाइंड आउट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज को फाइंड करना है। कैलकुलेट द मास एंड चार्ज, मास को फाइंड करना है, चार्ज को भी फाइंड करना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल का कितना होगा, ऑलरेडी यहाँ पे केजेस पता है, 9.11 इंटू 10⁻31 केजेस। तो 1 मोल का चाहिए, तो 1 मोल हैविंग नंबर ऑफ एटम पार्टिकल्स आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर। तो इसको एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आने के बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू एवोगाड्रो नंबर। मतलब दोनों को, मास को, चार्ज को एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। तो एक बार यहाँ पे ऑब्जर्व करो, charge and mass of 1 mole of electron. First mass of electron is equals to 9.11 into 10⁻31 kgs. So 1 mole of electron चाहिए, 1 mole of electron mass is equals to 9.11 into 10⁻31 into 6.022 into 10⁻23। तो उसको मल्टीप्लाई करो, आपको मास केजेस में मिल जाएगा। नेक्स्ट, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, तो चार्ज कितना होगा 1.6 ही लेना, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स इंटू ये। तो अपने को कितना चाहिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ electron is equals to 1.6 into 10⁻19 into 6.022। 1 मोल दिया तो 1 मोल हैविंग, आपको फर्स्ट लेसन में आएगा ये, 1 मोल हैविंग पार्टिकल्स आर 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स रहेगा। ये 1 मोल में कितना पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास मिल जाएगा। एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स ऑन नेक्स्ट क्लास। ओके, एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करो, जितना होगा उतना कर दो, और जो भी प्रॉब्लम होगा तो पर्सनल व्हाट्सएप करो, आई विल सेंड आंसर्स। ओके, राइट।